चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि हैव यू रिवाइज्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडीड टिल द लास्ट क्लास। इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट वी कैन स्टार्ट द analysis of the circuit for the DC supply. Okay, so we want to study the DC transient. DC means this is your supply. Okay, so DC means this is your supply. So supply is DC, and lossless means since your line is lossless, so alpha will become 0. So DC supply makes your beta equal to 0. Fine, and AC supply makes अल्फा इक्वल टू लॉसलेस लाइन मेक्स अल्फा इक्वल टू 0. तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. फाइन, यस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू गो फर्दर. चलो देखते हैं आगे क्या क्या डिस्कशन हो सकता है. सो दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन. अभी मैं ट्रांसमिशन लाइन में बैटरी लगाता हूँ डीसी सप्लाई. सो दिस इज योर डीसी सप्लाई और द बैटरी. This is the resistance that you are having, or let me call this thing as ZZ. आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, चलो ये देखो, ये हो गए आपके टर्मिनल्स. सो इन केस ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस वी यूज टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस. ओके, सो दिस वाज द रेफरेंस एक्सिस Z. सो दिस वाज योर एक्चुअली Z इक्वल टू 0 and this was Z equal to L. This was the reference that we considered in transmission line. All the other cases we are considering the reference to be load, and from load at a distance x we used to calculate everything. So let me give you a brief revision of all the things. When we started the transmission line analysis, then in that case we considered your Z axis from source to load. After that, after some classes we changed the reference and we considered the load to be reference, and from there at a distance of x we used to calculate all the parameters. Then as soon as the transient analysis started we again came back to our previous reference. So all the references has been interlinked very carefully in all the cases. So वो आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देखना. ठीक है, चलो ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई. Let me consider the length of this transmission line. So you can consider the length of this transmission line to be L. This is the length of the transmission line. This transmission line is lossless. So characteristic impedance will be Z0, alpha will be 0, beta will also be 0 because there is DC supply. So this supply is DC in nature. DC supply which makes beta equal to 0. ये पॉइंट भी आ गया समझ में. ठीक है, चलो ये Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू L के रेफरेंसेस भी हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिए. वेरी गुड. एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर? द वेलोसिटी. So what will be the velocity? So you can consider the velocity length आपको L दिख रही है, and whatever the time it takes to reach from source to load. So what is TR? Let me define the TR as L by Vp. ठीक है, and this TR is time taken to reach from source to load. Time taken to reach from source to load. सोर्स टू लोड वंस, एक बार की बात हो रही. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट इतना समझने में? तो टी आर हमने टाइम में डिफाइन कर लिया. तो जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे मैं डिफाइन करते चल रहा हूँ ना, वो मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा भी दे रहा हूँ कि एक ये पैरामीटर हो गया, एक ये पैरामीटर हो गया. क्लियर हो गई बातें? चलो अब आप मुझे बताना कि लोड पे आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा. इफ आई हैव टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड, हाउ शुड आई डिफाइन इट? देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपको बताने हैं कि हमें इसको क्या डिफाइन करना चाहिए. सो आई विल डिफाइन दिस थिंग एज गामा जी. दिस विल बिकम जेड जी माइनस जेड नॉट. व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बिकम गामा एल. This will become gamma L, and this becomes ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ वन बाय वन. आपको भी ऐसे ही डायग्राम अपडेट करना चाहिए. एक बिल्कुल खाली डायग्राम बनाइए,
start with the DC supply, then identify your internal impedance, try to identify the ends, then make this Z axis a positive Z axis, identify your load ZL. So once you identify your load ZL, try to find out the parameters of the lossless transmission line. So this line is lossless. ठीक है, तो lossless transmission line में your alpha will become 0, DC supply की वजह से beta becomes 0. Apart from that, you should also consider what is the velocity by which this wave is traveling from source end to load end or from load end to source end, and TR is the time which is taken by this wave to reach from source to load once in this particular length L. यहाँ तक सारा का सारा डिस्कशन सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी समझाया था कि ये वाला जो टर्मिनल होता है, दिस टर्मिनल, ओके, ट्रांजिएंट एनालिसिस के केस में वी कैन कंसिडर दिस टर्मिनल एज XY. सो कैन यू टेल मी, if I am interested in the calculation of VXY, how many of you think that this particular transmission line should be replaced by their characteristic impedance? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको बताना है कि अगर मैं VXY कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, रिमेंबर मुझे VI कैलकुलेट नहीं करना. होपफुली आपको याद होगा कि VI और VXY में काफ़ी डिफरेंस है. VI का मतलब होता है इनपुट पे सप्लाई क्या है, VXY जस्ट एक मेथड हमने डेवलप किया था सो दैट वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज इन अ वेरी इजी मैनर. सो कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट VXY? सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट द VXY, calculation of VXY, अगर ये कैलकुलेशन करनी तो आप शायद इस चीज़ से एग्री करेंगे दैट वी शुड रिप्लेस द ट्रांसमिशन लाइन विद व्हाट? इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0. This terminal is X, this terminal is Y, and this is your VG. This is ZC. Whatever the current which is flowing, it will become IXY. ठीक है ना यार? तो ये पॉइंट भी सबको याद होना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ VXY अगर करनी है हमको, सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट वी शुड रिप्लेस द ट्रांसमिशन लाइन विद Z0. इसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रांसमिशन लाइन को इक्विवेलेंट Z0 से रिप्लेस कर दिया. दिस इज जस्ट अ मेथड दैट वी हैड डेवलप्ड टू रिमेंबर द फॉर्मुलाज इन अ वेरी इजी मैनर. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VXY? सो द VXY becomes VG into Z0 upon Z0 plus ZC. And how to calculate IXY? So the IXY becomes VG upon Z0 plus ZC. ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल्स आई थिंक सबको पता है ये कैलकुलेशन कैसे करी जाती है. चलो ये बात तो हो गई अपनी पूरी. अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको याद हो. सो वोल्टेज at a distance Z, voltage at a distance Z when supply आपको दे रखी हो DC, लाइन आपकी कैसी हो, lossless. So when these two cases occur, I gave you the formula of the voltage, and what was that formula? That formula was Vz equal to VXY 1 plus gamma L upon 1 minus gamma L gamma G. तो ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास से याद आना चाहिए था. इसको मैंने लास्ट क्लास में केस 3 बोला था, अगर आपको याद होता तो. ठीक है, सो इन द लास्ट क्लास वी कॉल्ड दिस थिंग एज केस 3. सिमिलरली इफ यू हैव टू कैलकुलेट करंट एट अ डिस्टेंस Z, देखो डिस्टेंस Z लिख दिया ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि वो आप सोर्स से ही कंसिडर कर रहे हो. व्हेन these two different cases, when supply was DC and line was lossless. So this is your lossless line. उस केस में अगर आपको याद होता, so we also calculated IZ and it was coming out to be IXY. So these are just points which you should revise. तो जस्ट मैंने आपके रिवीजन के लिए इसको लिख दिया यहाँ पे. वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल यू जस्ट कैन लुक इट नाउ. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स सबको समझ आ रहे हैं, तो इसको भी एक बार कंफर्म करो, फिर मैं आगे आपको समझाना शुरू करता हूँ. ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्रूशियल पॉइंट that we have already developed this formula of the voltage at a distance Z and current at a distance Z, in which case
व्हेन लाइन बिकम्स लॉसलेस एंड सप्लाई वाज डीसी, लाइन बिकम्स लॉसलेस, सप्लाई वाज डीसी। याद आ रहा है सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है, ओके। तो एक बार ये भी कंफर्म करो यार। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास होगी अगर आप ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ पाते हैं तो। सो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ठीक, चलो आते हैं अभी एनालिसिस करते हैं वोल्टेज की। सो लेट मी एनालाइज द वोल्टेज at a distance z from source. Just I want to analyze this thing. एक एक करके समझना सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। दिस इज Vz, दिस इज योर Vxy 1 minus gamma L upon 1 minus gamma L gamma G. Fine. So can I write this Vz as Vxy upon 1 minus gamma L gamma G plus gamma L Vxy upon 1 minus gamma L gamma G. Hope everyone is comfortable with this point. देखो यहाँ पे जो आपका गामा L होता है वो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है. So what will be the magnitude of gamma L? The magnitude of gamma L will lie between 0 to 1. What is the magnitude of gamma G? The magnitude of gamma G also lies between 0 to 1. So what will be the product of gamma L into gamma G? Obviously the product of gamma L into gamma G will also lie between 0 to 1. Why I am writing this? Because I want to consider this 1 minus gamma L gamma G as the summation of an infinite GP. You know that for an infinite GP, the summation becomes S equal to A upon 1 minus R only when mod R is less than 1. Yes or no? तो अगर आप कोई भी infinite GP का summation लेते हैं, so that summation always becomes A upon 1 minus R only when the common ratio's magnitude is less than 1. So you can see that if I consider this quantity to be my common ratio, if I consider this quantity to be common ratio and this quantity to be common ratio, can you expand this particular expression whose summation is already present there? तो चलो इसको expand करते हैं. So once you will expand this expression, you can take this Vxy and you can write this thing as 1 plus gamma L gamma G plus gamma L gamma G square plus gamma L gamma G cube up to infinity. तो ये वाला एक्सप्रेशन हुआ. अब देखो ये Vxy upon 1 minus gamma L gamma G, अगर आप इस पूरे को समेशन को कैलकुलेट करते हैं, you know that if this is your R, so you can get the summation A upon 1 minus R. ये भी एक बार कंफर्म करो. सब लोग समझ गए कि आपने ये जो Vxy upon 1 minus gamma L gamma G था इसी को एक्सपैंड करके ऐसे लिख दिया. फाइन, चलो नेक्स्ट देखो. प्लस एक दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी तो इसमें आ रहा होगा. व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? इन दैट एक्सप्रेशन यू आर ऑलरेडी टेकिन गामा एल आउट, तो गामा एल आउट कर लो, बाकी अंदर तो आपको यही सेम दिखेगा. गामा एल गामा जी होल स्क्वायर प्लस गामा एल गामा जी. बहुत ध्यान से समझते रहना है सारी बातें. एक बार ये समझ आ गया तो क्वेश्चन आपसे तुरंत का तुरंत लगने लगेगा, दैट इज फॉर श्योर. चलो देखो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे. अब मैं क्या करता हूँ, इनको इकट्ठा लिखना चाहता हूँ, दोनों को कंपाइल करके. सो दिस विल लुक लाइक दिस. Vxy तो चलो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक टर्म आपको दिखेगा Vxy गामा एल. जब इनका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, इसका 1 से होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो. सो यू विल हैव Vxy गामा एल गामा जी एंड दिस विल हैव Vxy. अब गामा एल ये वाला मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये गामा एल स्क्वायर हो जाएगा. गामा एल स्क्वायर गामा जी, अगेन मल्टीप्लाई Vxy, दिस विल गिव यू गामा एल स्क्वायर गामा जी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, दिख रहा है सबको यहाँ तक? अब बहुत ध्यान से सारी बातें समझना वन बाय वन. ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज at a distance z from the source. Obviously when we wrote the formula of Vz, it was independent of z. It was independent of z as you can see. तो इस पे z पे तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं. मतलब मैं z से 1 किलोमीटर जाऊँ, 10 किलोमीटर जाऊँ, 100 मीटर जाऊँ, यहाँ पे मुझे Vz में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें
तो ये वी एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वी एक्स वाई इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल सेटअप ऑफ वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते तो इस ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियल वोल्टेज क्या सेटअप हुआ? वी एक्स वाई सेटअप हुआ, ये वी एक्स वाई। अब ये वी एक्स वाई ट्रैवल करते करते पहुंचा लोड तक। जब ये लोड तक पहुंचा तो आपको मुझे ये बताना, लोड इसमें से कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देगा? क्या लोड इसमें गामा एल मल्टीप्लाई करके रिफ्लेक्ट कर देगा? तो सब कुछ तो रहेगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ही, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रांसमिशन लाइन। सो यू कैन सी दिस वी एक्स वाई वोल्टेज गोइंग देयर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो सी दिस गामा एल वी एक्स वाई रिटर्निंग। दिख रहा है सबको? गामा एल वी एक्स वाई वहां से लौटता हुआ दिख रहा है। अब मुझे बताना, जब गामा एल वी एक्स वाई इधर आ रहा होगा तो इधर से कितना हिस्सा ये वापस से लौटा देगा? इट विल रिफ्लेक्ट गामा एल गामा जी वी एक्स वाई। यस और नो? ये भी तो प्रेजेंट किस में रहेगा? ट्रांसमिशन लाइन में ही प्रेजेंट रहेगा। अब क्योंकि सारे के सारे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, सो दैट इज वाई यू कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दैट यू हैव एक्सपैंडेड, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? अ फॉरवर्ड वेव। तो ये फॉरवर्ड गया, गामा एल ने वहां से लौटा है, व्हाट दिस विल रिप्रेजेंट? दिस विल रिप्रेजेंट अ बैकवर्ड वेव। दिस विल a forward wave, again this will a backward voltage wave. Okay, so can you see infinite number of forward voltages and infinite number of backward voltages back and forth inside the transmission line? And what was Vz? Vz was actually giving you the steady state value of the voltage, which means जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करने के बाद उसको कुछ मौका दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉरवर्ड वेव्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैकवर्ड वेव्स, दे एक्चुअली गेट्स सुपर इम्पोज्ड, और सुपर इम्पोज वगैरह होने के बाद आपको एक्सप्रेशन क्या मिला था? ये मिला था। तो इसको आप क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट वोल्टेज। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। सेम चीज़ मैंने बहुत फोकस देके बताई थी। दिस इज कॉल्ड एज steady state voltage. So why is it being called as the steady state voltage? Hopefully you must be understanding this point, because this expression that you are getting it here is actually the combination or the superimposition or the linear summation or the weighted summation of infinite number of the forward and backward voltage waves which is present inside the lossless transmission line. तो वी एक्स वाई, गामा एल गामा जी वी एक्स वाई, गामा एल गामा जी वी एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे फॉरवर्ड जाएंगे और बैकवर्ड। जब इनको आप पूरा का पूरा समेशन कर दोगे, सो दे विल फॉर्म अ इनफाइनाइट जीपी, एंड दैट इनफाइनाइट जीपी इज एक्चुअली गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये पॉइंट समझ आया सबको? चलो एक बार मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, अगर आप यहाँ तक समझ चुके हो तो मुझे कन्फर्म करो, फिर मैं इसके आगे के कुछ लेयर्स आपको समझाता हूँ। तो वोल्टेज की पूरी आपने एनालिसिस कर ली कि ये वोल्टेज जो आपको दिख रहा था ये सच में आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड की बहुत सारी वेव से मिलके बना हुआ था। ओके, ये पॉइंट अगर समझ आ गया तो एक अगला डायग्राम समझते हैं, देन वी विल मेक सम टेबल्स। ठीक है? ओके, वेरी गुड। यहाँ तक भी सब कुछ समझ आ रहा है, वेरी इजीली, काफ़ी आसानी से समझ में आना चाहिए। देखो अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ। कंसिडर दिस थिंग एज योर सोर्स। ठीक है, इसको सोर्स मानो, इसको बस ध्यान से समझ लो यार, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला डिस्कशन जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। इसको आपको मानना लोड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोर्स की पोजीशन क्या है? इट इज z इक्वल टू 0। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लोड? द पोजीशन ऑफ लोड इज z इक्वल टू l। ओके, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द सोर्स? इट इज गामा g। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड? इट इज गामा l। ठीक है, चलो ये चीज़ हमको समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जब भी हम लोग डीसी ट्रांजिएंट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियल वोल्टेज क्या सेटअप हो रहा है, वी एक्स वाई या वी आई? जब भी आप ट्रांजिएंट्स एनालिसिस करना चाहते हैं, व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज दैट हैज़ बीन सेटअप इन द ट्रांसमिशन लाइन? तो इस फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि ये वी एक्स वाई का इनिशियल वोल्टेज सेटअप हो रहा है। अगर वी एक्स वाई का इनिशियल वोल्टेज सेटअप हो रहा है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द वी एक्स वाई? यू कैन सिंपली कैलकुलेट वी एक्स वाई जस्ट बाई टर्मिनेटिंग योर ट्रांसमिशन लाइन इनटू जेड नॉट। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक याद रखना। यहाँ से आपका वो वाला कन्फ्यूजन भी दूर होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग t इक्वल टू 0 पे और z इक्वल टू 0 पे z नॉट से रिप्लेस क्यों करते हैं। समझ आ रही बात? तो ये कन्फ्यूजन मैंने लास्ट क्लास में भी दूर कराया था, यहाँ पे जस्ट एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इन केस ऑफ ट्रांसिएंट्स एनालिसिस, just to calculate the Vxy, because from the formula it is very imperative that Vxy has been set up in the transmission line initially. So you can say that since it has been set up initially, so we will replace the transmission line with Z0. इसका इनपुट इम्पिडेंस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो जो आप यहाँ पे Vxy वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये सिचुएशन, ये वोल्टेज आपकी कहाँ पे सेटअप होगी? दिस विल बी एट t इक्वल टू 0 प्लस एंड z इक्वल टू 0। दिस विल बी द सिचुएशन।
जैसे ही आपने स्विच क्लोज करा यहाँ पे एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0+, ओके, तो उस पॉइंट पे जो इनिशियल वोल्टेज आपका सेटअप होगा वो Vxy होना चाहिए, और वो इस फॉर्मूले से आपको दिख भी रहा होगा। ये देखो इनिशियली क्या सेटअप हुआ, Vxy, ये गया लोड पे, फिर लोड ने वापस से वहाँ पे कुछ हिस्सा लौटाया। ठीक है यार, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना। चलो, तो देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे जगह पे इस पर डिबेट है कि जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं तो अपनी लाइन को Z0 से रिप्लेस कर देते हैं, और जब नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन को Zin से रिप्लेस कर देते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रांसमिशन लाइन हमेशा Zin से रिप्लेस होती है अगर आपको नेटवर्क लगाना है। ये एक अल्टरनेट मेथड हम लोगों ने डेवलप किया था सो दैट वी कैन कैलकुलेट Vxy, ताकि अपनी इक्वेशंस या मैथमेटिकल एनालिसिस कंसिस्टेंट रहे। तो शायद ये पॉइंट अब आप तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और उन क्वेश्चंस का आप 1 बाय 1 आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, देखिए ज़रा इस पॉइंट को भी। जहाँ पे देखो इनिशियल वोल्टेज आपका क्या सेटअप होगा, समझना बात को बहुत ध्यान से। ये देखें, है ना, t इक्वल टू 0+ पे, ये सोर्स पे z इक्वल टू 0, तो आपका सोर्स का सिचुएशन, ये t इक्वल टू 0+ वाला वोल्टेज सेटअप हुआ, हो गया सोर्स पे सेटअप। लाइन बीच में कैसी है, लॉसलेस, सप्लाई कैसी थी, डीसी, तो कोई लॉस होगी नहीं क्योंकि अल्फा भी 0 बीटा भी 0, तो कोई लॉस हुआ नहीं। तो मुझे बताना, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा यार, टाइम भी आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने। टी का टाइम लग जाएगा, और एग्जैक्टली देखो मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, टी इक्वल टू टी माइनस, टी आपका वही है, टी को मैं डिफाइन कर देता हूँ L/Vp। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं इसको, समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहीं पे रोकते हैं इसको। सो दिस इज जस्ट बिफोर रीचिंग टू लोड। लेट मी डिफाइन दिस टी, दिस इज द लेंथ बाई Vp। यहाँ से आप लोग आंसर भी करेंगे, ये जा रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये लोड पे पहुँचने से जस्ट पहले हम लोगों ने सिचुएशन कैलकुलेट करी। अब देखो ये वोल्टेज जाएगी, लोड को हिट करेगी ना, लोड इसमें से कितना हिस्सा लौटाना चाहेगा, तो लोड इमीडिएटली कितना हिस्सा लौटा देगा, देखो इमीडिएटली लोड बोलेगा कि गामा L Vxy t इज इक्वल टू टी प्लस पे, है ना। तो इसने क्या, इसने लोड को हिट करा और लोड ने उसमें से उतना हिस्सा लौटा दिया। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, एग्जैक्टली t इक्वल टू टी प्लस पे लोड पे कितना वोल्टेज होगा। तो देखो ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली t इक्वल टू टी प्लस पे ये ऊपर वाला वोल्टेज तो आ ही रहा था, ये ऊपर वाले वोल्टेज तो लोड के पास पहुंचा, वो अभी लोड पे ही है, लोड ने उसमें से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट किया, वो भी अभी लोड पे ही प्रेजेंट है। तो t इक्वल टू टी प्लस पे क्या लोड पे आपको दो वोल्टेजेस दिख रहे हैं, एक तो जो आके उसको हिट करा, उसको भी लोड ने अपने पास रखा हुआ है, उसमें से कुछ हिस्सा लौटाना चाहता है, वो भी अभी लोड के पास प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली t इक्वल टू टी प्लस पे लोड पे कितना वोल्टेज है, तो आप क्या बोलोगे कि एक तो Vxy वाला लोड के पास पहुंचा, ये लोड के पास प्रेजेंट है, लोड ने उसमें कुछ मैनिपुलेट करके कुछ हिस्सा उसमें से लौटाना चाहा, वो भी अभी t इक्वल टू टी प्लस पे तो लोड के पास ही प्रेजेंट है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को सोच समझ के बताइए कि अगर मैं पूछता t इक्वल टू टी प्लस पे लोड पे क्या वोल्टेज प्रेजेंट है, तो आप बोलते जो आ रहा था साथ में जो जाने की फिराक में था, दोनों वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट है, दोनों का समेशन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। समझ आ रही बात सबको? बोलो, इसको समझो और इसको बताओ, फिर इस चीज को यहां से भी प्रोसेस करते हैं। समझ आ गया? चलो इसको पहले मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। चलिए, चलो अब यहाँ पे देखो सेम चीज़, अब यहाँ पे देखो आ कौन सा हिस्सा है, गामा L Vxy t इज इक्वल टू टी प्लस, इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम कितना लग जाएगा, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2t माइनस हो जाएगा। समझना इस बात को ध्यान से यार, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो यहीं पे आपका क्रैक हो जाएगा सब कुछ। देखो ये पहुँचा, है ना, ये पहुँचा, ये सोर्स पे हिट हुआ, तो सोर्स इसको तो रख लेगा, इसको तो रखेगा ही, लौटा कितना देगा इसमें से, बोलो, सोर्स इसमें से
गामा एल गामा जी इतना लौटा देगा। देखिए सोर्स पे ये पहले से था, ये और आ गया इस पे, सोर्स ने इसको भी रखा, इसमें से जो हिस्सा लौटा रहा था वो भी t इक्वल टू 2t प्लस पे यहीं प्रेजेंट था। तो आप मुझे बता सकते हो t इक्वल टू 2t प्लस पे सोर्स पे क्या क्या दिखेगा आपको। वी एक्स वाई तो था ही था पहले से, वो तो शुरू में ही सेटअप हो गया था, कुछ लॉस तो हो नहीं रहा था उसमें, तो वो प्रेजेंट था। फिर वहाँ से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, वो तो रखेगा ही रखे अपने पास, उसमें से कुछ गामा जी मल्टीप्लाई करके लौटा भी जब रहा होगा तो वो भी 2t प्लस पे यहीं पे प्रेजेंट होगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस टाइम इंस्टेंट पे 2t प्लस पे सोर्स पे आपको कौन कौन से वोल्टेजेस दिखेंगे। क्या ये दिखेगा? यस ये दिखेगा, ये भी, ये दिखेगा। तो इन तीनों का समेशन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए 1 बाय 1। ठीक है, ये पॉइंट समझो। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो इसके आगे की कहानी धीरे धीरे अब आपको टेबल से समझ आएगी, टेबल भी मैं बनवाता हूँ, बट होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस वेरी क्रूशियल पॉइंट that how these voltages are being bounced from source to load and load to source. So the bouncing should be understood in a very comprehensive and very proper manner. ठीक है, समझ आया। अब इसके आगे की सिर्फ कहानी हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। देखो अब ये गामा एल गामा जी वी एक्स वाई पहुंचा लोड तक, पहुंच गया लोड तक, कौन से इंस्टेंट पे पहुंचेगा? 3t माइनस पे पहुंचेगा। जब वो 3t माइनस पे पहुंचा तो लोड क्या करेगा? उसको तो रखेगा, अपनी तरफ से गामा एल मल्टीप्लाई करके उसको भी लौटाने की फिराक में रहेगा। तो उस टाइम पे तो लोड पे वो दोनों वोल्टेजेस प्रेजेंट रहेंगे। लौटेगा कितना वहां से? ये देखो गामा एल गामा जी इंटू गामा एल, तो गामा एल स्क्वायर गामा जी वी एक्स वाई टी इज इक्वल टू 3t प्लस वाला वोल्टेज वहां से लौट जाएगा, और यही आपका बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर आप किसी भी टाइम प्लस पे बात करते हैं, t प्लस 2t प्लस 3t प्लस, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, उस टाइम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों वेव वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करना चाहिए। समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? यस, ओके। अगर समझ आ गया तो टेबल आपको समझ में आ जाएगी। आया समझ में या नहीं? आ गया? चलो टेबल देखो, टेबल ऑफ वोल्टेज एनालिसिस। देखिए क्या है ये टेबल। तो ये टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ वोल्टेज एनालिसिस देखते हैं। व्हाट इज द टेबल ऑफ वोल्टेज एनालिसिस? ठीक है, चलो अब टेबल आपको बताना है मुझे साथ के साथ, साथ के साथ आपको टेबल भी बताते रहनी है, ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेबल, और यहाँ से आप देखना जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको कितनी जल्दी क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे आप, क्योंकि आपने ना पूरी की पूरी एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म कर लिया है। चलो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ले लेता हूँ। ये आपका टाइम, ओके, एंड लेट मी कॉल दिस एज सोर्स एंड। इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स एंड। सोर्स एंड का मतलब z की वैल्यू 0। इसको मैं बोल देता हूँ लोड एंड। लोड एंड का मतलब z की वैल्यू l। ठीक है, चलो अब आप एक एक करके मुझे बताते हैं, जाएंगे सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले बताना है t इक्वल टू 0 प्लस पे, बोलो t इक्वल टू 0 प्लस पे सोर्स एंड पे वोल्टेज कितना होगा? क्या वी एक्स वाई लिख दें इस वोल्टेज को? इसको लिख सकते हैं वी एक्स वाई। इस एंड पे कितना होगा वोल्टेज? 0, क्योंकि अभी जब आपने t इक्वल टू 0 प्लस लगा रखा है तो अभी वहाँ तक कोई भी वेव पहुँची नहीं है। ये पहली टेबल तो सक्सेसफुली हो गई अपनी कंप्लीट। ठीक है, चलो सेकंड पे आओ। सेकंड पे मैं क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू टी प्लस का सीधे सिचुएशन लेके चलता हूँ। तो t इक्वल टू टी प्लस पे वेव आपकी पहुंचेगी कहाँ पे? लोड एंड पे। तो सोर्स एंड पे तो कोई चेंज होगा नहीं। अब देखो लोड एंड पे होगा क्या, ये पहुंचे वी एक्स वाई भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और वी एक्स वाई का जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो भी उस दौरान लोड पे ही प्रेजेंट होगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलिए, ज़रा चलते जाइए आगे। टाइम में थोड़ा सा आपको और बढ़ाता हूँ। टाइम मैंने कर दिया 2t प्लस। जैसे ही मैंने टाइम 2t प्लस किया वापस से वो कहाँ पे आ गया? सोर्स एंड पे आ गया। तो इस पर तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, गामा एल वी एक्स वाई। अब देखो इसका कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिफ्लेक्ट तो गामा एल वी एक्स वाई हो रहा था ना, तो गामा एल वी एक्स वाई यहाँ पे आने दो। चलो ये इंतजार कर रहा था गामा एल वी एक्स वाई का। गामा एल वी एक्स वाई को तो इसने अपने पास रख ही लिया, बट इसमें गामा जी मल्टीप्लाई करके ये वापस भी लौटाना चाहता था इसको। बट जब ये लौटाना चाहता था तो ये प्रेजेंट तो 3t प्लस पे 2t प्लस पे वहीं पे था ना, तो 2t प्लस पे क्योंकि प्रेजेंट वहीं पे था तो ये भी उसी में ऐड हो गया। चलिए आ जाओ 3t प्लस पे।
3t प्लस पे कौन से एंड पे रहेगा, लोड एंड पे वापस से पहुंच जाएगा, तो सोर्स में कोई चेंज होने से रहा, वी एक्स वाई प्लस गामा एल वी एक्स वाई प्लस गामा एल गामा जी वी एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसमें से रिफ्लेक्ट कौन सा हिस्सा हो रहा था, गामा एल गामा जी को इसने लौटाया था, तो गामा एल गामा जी यहाँ पे पहुंचे, ये तो पहले से प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो गामा एल गामा जी को तो ये रखेगा ही अपने पास, और इसमें से लौटाएगा कितना, गामा एल स्क्वायर गामा जी लौटाएगा अपने पास से। तो अगर ये गामा एल स्क्वायर गामा जी लौटाएगा तो ये प्रेजेंट तो उसी टाइम पे होगा ना, तो इसने गामा एल स्क्वायर गामा जी यहाँ से लौटा दिया। बट क्योंकि हम लोग इसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट पे ये वोल्टेज भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो क्या अब ये पूरी की पूरी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो, बोलो 40 प्लस पे कर लोगे इसको कंप्लीट, बोलो अगर मैं आपसे पूछा 40 प्लस पे तो क्या होता, तो ये वी एक्स वाई प्लस गामा एल वी एक्स वाई प्लस गामा एल गामा जी वी एक्स वाई, ठीक है, प्लस देखो वहां से गामा एल स्क्वायर तो आ रहा था, तो वो तो ऐड होगा ही होगा, साथ में ये इसमें गामा जी भी मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, बाकी ये तो आपका सेम रहेगा एज इट इज। चलो कितने लोगों को टेबल समझ आ गए, जिनको टेबल समझ आ गई वो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस टेबल, और इसी की मदद से हम लोग अभी एक करंट वाली टेबल भी बनाएंगे, फिर उसके बाद बाउंस डायग्राम, फिर मैं आपको बताऊंगा टोटल आपको डीसी ट्रांजिट में 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। समझ आया कैसे बना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाएँ। देखिए सोर्स एंड पे देखना हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट है, 1 3 5, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट है, 2 4 6 and so on. So whenever you have to write the voltage, start from the Vxy, write odd number of terms always at the source and even number of terms at the load. So what is the shortcut or what is the way to remember this thing, that whenever we are dealing with the questions of the DC transient, we will always write odd number of terms where at the source, and we will always write the even number of terms where at the load. और टोटल ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेजेस होंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन में इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विच इज प्रेजेंट, तो ये वी एक्स वाई ये सबका कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा, दैट विल बी द वोल्टेज इन साइड द ट्रांसमिशन लाइन। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू visualize your source end and load end differently, this is the table which is giving you the voltage analysis of the source end and load end differently, or source end and load end respectively. Apart from that, अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो ये कंप्लीट एनालिसिस दे रहा है, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, सोर्स लोड पूरे वोल्टेजेस का इसमें कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और उसको आपने नेट वोल्टेज कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला डेवलप कर रखा था ऑलरेडी। तो ये तो नेट वोल्टेज है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना नेट वोल्टेज प्रेजेंट है, उसमें से कितना हिस्सा सोर्स पे प्रेजेंट है, कितना हिस्सा लोड पे प्रेजेंट है, उसी को आपने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके ये टेबल बना दी। अब ऑब्वियसली देखो लाइन लॉसलेस है, अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो, तो कोई लॉस होगा नहीं, वी एक्स वाई चलेगा अपना सोर्स एंड से, लोड एंड पे वी एक्स वाई बन के ही पहुंचेगा, वहां से गामा एल वी एक्स आई स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी गामा एल वी एक्स आई के तौर पे ही पहुंचेगा, तो वो बीच में कहीं पे कोई लॉस नहीं है। इस वजह से आप बोल सकते हैं डीसी ट्रांजिएंट के केस में जो नेट वोल्टेज इनसाइड द ट्रांसमिशन लाइन होता है, दैट इज एक्चुअली द वोल्टेज प्रेजेंट एट द सोर्स प्लस वोल्टेज प्रेजेंट एट द लोड, बीच में उनके ट्रांसमिशन से कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो इन जनरल यू कैन से इन केस ऑफ डीसी ट्रांजिएंट, the net voltage present inside the transmission line is actually the summation of the voltages developing at the source plus summation of the voltages developing at the load. समझ आई बात सबको यहाँ तक? Yes. So I think this point is also clear to everyone. ये पॉइंट भी आप याद रखना। चलिए तो सेम तरीके से क्या करते हैं, एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट, ठीक है। तो अगर बाय द वे मैं इसको ऐसे लिखता, देखिए अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, सो कैन यू टेल मी व्हाट दिस विल रिप्रेजेंट, दिस विल रिप्रेजेंट वोल्टेज एट सोर्स एंड,
Okay, this will always have odd number of terms. Odd number of terms. What this will represent? V of L comma T. This will represent voltage at लोड एंड. तो अगर ये वोल्टेज एट लोड एंड रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? दिस विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स. ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है. सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एज ऑफ नाउ. सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं. चलो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और डिस्कशन भी करते हैं. चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सपोज अगर मैं लिखता v ऑफ 0,0, तो आपको ये बताते रहना v ऑफ 0,t इक्वल टू v ऑफ 0,0. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? तो आप इस बार दोनों अंदाजा आपको लगाना है. 0 की वजह से सोर्स, इस 0 की वजह से कौन से एंड पे आप प्रेजेंट हो? t इक्वल टू 0 पे तो हमेशा कौन से एंड पे ही प्रेजेंट रहोगे? सोर्स एंड पे ही ना. तो ये आपको मिलेगा Vxy. नेक्स्ट वोल्टेज, ये सारे वोल्टेजेस आपको लिखने आने चाहिए. नेक्स्ट वोल्टेज इफ आई मेक V ऑफ L, Z, T, इसको Z कर लो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे भी Z, T ऐसे लिखता हूँ, V ऑफ L, T, देखो तो V ऑफ L, T क्या रिप्रेजेंट करेगा? L इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ एंड T इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? T का मतलब वही TR है ना. TR अगर आपको लिखना है TR लिख लो. सो दिस विल रिप्रेजेंट Vxy प्लस गामा L Vxy. नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज V ऑफ Z, T? 0,2 TR. तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है. ये पढ़ना क्यों आना चाहिए? क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस में आपको ये वेव फॉर्म्स दी होती हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है. तो ये पढ़ना आपको आना चाहिए. Z इक्वल टू 0 मतलब, बोलो, Z इक्वल टू 0 मीन्स सोर्स. 2 TR का मतलब ये कितनी बार आ रहा है? सेकेंड टाइम आ रहा है. ये क्या है? लोड. TR का मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम लोड पे. ये 0 का मतलब सोर्स, इस 0 का मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा है. चलो, तो ये वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो? Vxy प्लस गामा L Vxy प्लस गामा L गामा G Vxy. 3 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे. तो ऐसे करके अगर आपको कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दे दे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दे दे नेक्स्ट केस में V ऑफ Z, T इक्वल टू V ऑफ L, 3 TR, तो आपको जजमेंट लेना आना चाहिए कि वो असल में मेंशन क्या कर रखा है क्वेश्चन में. तो V ऑफ Z, T इफ समवन मेंशंस यू, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपको दे देगा L, 3 TR. तो आपको दोनों चीज़ें समझ आनी चाहिए कि जैसे ही L यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लोड, और 3 TR से कैसे पहचानोगे? TR पे पहली बार लोड पे आया था, फिर उसको दुगना टाइम लगेगा लोड पे आने में. सो दिस विल बी द सेकेंड टाइम एट लोड. ठीक है. तो यहाँ से कितने टर्म्स लिखेंगे आप? 4 टर्म्स. गामा L Vxy प्लस गामा L गामा G Vxy, देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई गामा L स्क्वायर गामा G Vxy. ठीक. तो अभी तक आपको क्या क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए इन दीज डिस्कशंस? फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस केस, दैट व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज सेटअप इन केस ऑफ डीसी ट्रांजिएंट. तो डीसी ट्रांजिएंट के केस में ये होता है आपका इनिशियल वोल्टेज सेटअप. इसी इनिशियल वोल्टेज सेटअप की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी, Vg अपॉन Zg प्लस Z0 इंटू Z0. ये आपका इनिशियल सेटअप. इनिशियल सेटअप के बाद आपको सोर्स एंड और लोड एंड पे जैसे जैसे वोल्टेजेस डेवलप हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो नो द वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट. अब देखो, वैल्यू याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाएगी. सोर्स एंड पे आप बस Vxy से स्टार्ट करो एंड यू जस्ट हैव टू नो द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड एंड सोर्स एंड. तो लोड एंड और सोर्स एंड पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर पता है तो सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से कैलकुलेट होती चली जाएंगी.
ये वी एक्स वाई है, तो एक बार लोड पे जाओगे तो गामा एल ऐड कर देना, वापस से सोर्स पे आना तो उसमें गामा एल में गामा जी मल्टीप्लाई कर देना, वापस से जाना तो फिर से गामा एल मल्टीप्लाई कर देना एंड सो ऑन। तो वो याद करना आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं करंट एनालिसिस की। अब करंट एनालिसिस के टेबल आप खुद बनाएंगे। ये ले लेते हैं t इक्वल टू 0, दिस इज सोर्स एंड दिस इज लोड। तो इसमें ज़्यादा नहीं बनाते, इसमें 2-3 पॉइंट्स ही लिख लेते हैं। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर सोर्स, ओके, दिस इज लोड। लोड मीन्स z इक्वल टू एल, सोर्स मीन्स z इक्वल टू 0। शुरुआत करते हैं t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 प्लस, तो इनिशियल करंट सेटअप कितना होगा आई एक्स वाई, यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पहुँचा नहीं। आगे बढ़ो, एग्जैक्टली t इक्वल टू टी प्लस में व्हाट विल यू गेट, दिस विल रिमेन आई एक्स वाई। अब देखो लिखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, फटाफट आपको आँख बंद करके लिखते रहना चाहिए। यहाँ पे आई एक्स वाई माइनस गामा एल आई एक्स वाई, वाई एम राइटिंग इट एज माइनस गामा एल, है ना, क्योंकि गामा एल इज ऑलवेज डिफाइंड एज वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स। तो अगर आप उनको करेक्ट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में कैलकुलेट करेंगे सो दे विल एक्ट एज योर माइनस गामा एल। सो इफ यू वांट टू राइट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स यू कैन राइट देयर एज माइनस गामा जी एंड यू कैन राइट देम एज माइनस गामा एल टू बी श्योर। इसको माइनस गामा एल कर लो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये आपके एक तरीके से करंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की तरह काम करेंगे। अगला बताइए नेक्स्ट, t इक्वल टू 2t प्लस, तो बस ये एक और लिख लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग एनालिसिस वाले पोर्शन पर। सो t इक्वल टू 2t प्लस, सो एट t इक्वल टू 2t प्लस ये आई एक्स वाई था, वहाँ से माइनस गामा एल आई एक्स वाई आया, इसने इसी माइनस गामा एल में माइनस गामा जी मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकेम गामा एल गामा जी आई एक्स वाई, नो चेंज एट द लोड एंड, गामा एल आई एक्स वाई। सो होपफुली यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस थिंग। आ गया ये सबको समझ में? चलो अब ये दोनों टेबल्स अगर आप बताएं, अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं फिर आपको स्टेयरकेस डायग्राम्स बनाना सिखाता हूँ। जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, सो इन द क्वेश्चन यू नीड ऑल दिस एनालिसिस दैट आई हैव टोल्ड यू, दैट व्हाट इज़ द इनिशियल वोल्टेज सेटअप, व्हाट इज़ द इनिशियल करंट सेटअप, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये नोटेशंस पढ़ने आने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा, z, t अगर ये लिखा हुआ है, सो यू शुड be able to write all these notations, how these notations are written in first place, और उसके बाद फिर ये टेबल वगैरह तो बनानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो करंट के लिए भी सपोज इफ आई ऑफ z कॉमा t is written which is I of 0 comma 0, so you will write this thing as I xy which is your Vg upon ZZ plus Z naught, and suppose if it is given as I of z comma t which is equal to I of L comma t plus TR plus, एक टर्म ऐड कर देना इसमें, माइनस गामा एल आई एक्स वाई। सिमिलरली इफ इट इज रिटन अगेन 0 comma 2 TR plus, so this will give you I x y माइनस गामा एल आई एक्स वाई माइनस गामा एल गामा जी आई एक्स वाई, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ऐसे करके पूरा का पूरा डिस्कशन आप बढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक क्या क्या पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, देन वी विल कम ऑन टू द स्टेयरकेस डायग्राम। तो स्टेयरकेस डायग्राम में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द टेबल्स आर मेड। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट in case of lossless as DC voltage, what is the voltage at a distance Z and what is the current at a distance Z? पहला point. Second point that you have to remember is that particular voltage is the combination of infinite number of forward and backward wave. When they are superimposed, you are actually getting the steady state values which is shown there. तो वो फॉर्मूले असल में steady state value represent कर रहे थे।
Then you came to know that since the line was lossless, supply was DC, so the net voltage inside the transmission line was actually the voltage developed at the source and voltage developed at the load. तो source end पे आपने अलग से पूरा का पूरा टेबल बनाया, load end पे अलग से टेबल बनाया. Then fourth point, you should be able to read how the given expression looks like. अगर कोई भी v of z, t आपको दे दे DC ट्रांजिएंट के केस में, then you should understand कि वो सोर्स पे है या लोड पे है, और अगर सोर्स या लोड पे है तो कौन सी बार वो पहुंच रहा है. So with the help of the given time and with the help of the position, you can identify that voltage is reaching at the source first time, second time, third time, fourth time and so on. Similarly, voltage is reaching at the load first time, second time, third time and so on. तो ये भी आपको पहचानना आना चाहिए. The same thing, the same everything that you should do with the current. तो यहाँ तक अगर ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद है तो आप बताइए, फिर हम लोग इसके आगे डिस्कशन करते हैं and we will start forming this staircase diagram. तो staircase diagrams are very important क्योंकि सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस, मतलब 90% क्वेश्चंस आपके staircase diagram पे ही डिपेंडेंट होते हैं. फाइन, चलो तो यहाँ तक बताओ. अगर आप समझ गए हो तो हम लोग staircase diagram की बात करते हैं. ठीक है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.